ગુડ આફ્ટરનૂન, સ્વાગત છે આપનું ક્લોઝિંગ કેપિટલમાં. હું યશ આપની સાથે. શુક્રવાર પણ ઘટાડો અટક્યો નથી. 22,000 ફરી તોડી દીધું. બેંક નિફ્ટી પણ દબાણમાં છે. બધા પર નજર કરીએ. શરૂઆત હેડલાઇન્સની સાથે. માર્કેટમાં સતત 5 દિવસના ઘટાડામાં નાનકડી બ્રેક. ઉતાર ચઢાવ વચ્ચે નિફ્ટી 5% મજબૂતી બાદ 22,000 ફરી ટકાવી રાખવાની કોશિશમાં. બેંક નિફ્ટી 47,500 ને નીચે. આઈટી, રિયલ એસ્ટેટ સિવાય દરેક સેક્ટરમાં ખરીદારી. ડાઉ ફ્યુચર્સે લગાવી સેન્ચુરી. યુરોપિયન બજારમાં 0.5% વધુની મજબૂતી. એશિયન માર્કેટમાં મજબૂતી સાથે ક્લોઝ. પીએસયુ શેર્સમાં શાનદાર ખરીદારી. મજબૂત પરિણામ બાદ બીપીસીએલ 4% વધી. નિફ્ટીનો ટોપ ગેઇનર. ઓએનજીસી, એનટીપીસી, પાવર ગ્રીડમાં ખરીદારી. ટોપ ગિયરમાં ઓટો શેર્સ સતત ત્રીજા દિવસે તેજીમાં. હીરો મોટો લાઈફ હાઈ પર. મારુતિ, બજાજ ઓટો, અશોક લેલેન્ડ અને એસ્કોર્ટમાં ખરીદારી. મેટલ શેરમાં તેજીની ચમક. હિન્દુસ્તાન ઝિંક 10% વધીને લાઈફ હાઈ પર. વેદાંતા, હિન્દુસ્તાન કોપર, નાલ્કો, જેએસડબલ્યુ સ્ટીલ અને ટાટા સ્ટીલ મજબૂત. અને આશરે સીધા જઈએ અમારા ઇન્ટરેક્ટિવ વોલ પર અને સમજીએ કે ભારતીય માર્કેટ્સમાં કયા પ્રકારની સ્થિતિ છે. એક વાત સ્પષ્ટ છે કે ભારતીય માર્કેટ્સે જે દિવસના ન્યૂનતમ સ્તરો હતા, ગઈકાલે જે પ્રકારે ઘટાડો બતાવ્યો ત્યાંથી રિકવરી જરૂર બતાવી છે, પણ 22,000 પર વારંવાર સ્ટ્રેસ પણ આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. અત્યારે પણ તમે જુઓ 22,040 પર છીએ, પણ વારંવાર તોડવાની કોશિશ થાય છે. ફરી ત્યાંથી આવી જઈએ છીએ. આજે ક્લોઝિંગ બેસિસ પર 22,000 જળવાવું બહુ જરૂરી છે. જો ન જળવાય તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે. અને આવી જ રીતે 47,500 એક મહત્વનું લેવલ છે બેંક નિફ્ટી માટે. તેને નીચેના ક્લોઝ પર વધારે ખરાબ પરિસ્થિતિની પણ તૈયારીઓ આપણે રાખવી જોઈએ. તો આવો પહેલાં ડેઇલી ચાર્ટ્સ પર તમને સેટઅપ બતાવી દઈએ. નિફ્ટીની વાત કરી લઈએ. ખાસ નિફ્ટીમાં તમને જોવા મળી રહ્યું છે વધુ એક દિવસ કે જ્યારે થોડું ટેન્શન, થોડા પ્રોબ્લેમ્સ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. નો ડાઉટ ન્યૂનતમ સ્તરોથી સારી રિકવરી છે. 22,050 ને ઉપર પણ આપણે આવી ચૂક્યા છીએ, પણ તેમ છતાં પણ નિફ્ટી માટે આ એક પરિસ્થિતિ ખાસ તમને બનતી જોવા મળશે કે જેમાં ડેઇલી ચાર્ટ્સ પર બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેટઅપ તમને આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. જુઓ તમે, દિવસના ન્યૂનતમ સ્તરો બન્યા છે તમારા માટે. અહીંયાથી આગળ તે ખાસ તમે જોશો પરિસ્થિતિ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ન્યૂનતમ સ્તરો તમારા માટે જે ગઈકાલના ક્લોઝ હતા તેનાથી ઉપર જ છીએ આપણે. 950 આસપાસ તમને આજના દિવસના લો બનતા જોવા મળી રહ્યા છે. 21,950થી આપણે રિકવર થયા. ઉપર તમને 131 સુધીના હાઈ બનતા અહીંયાથી જોવા મળેલા છે. અને 131થી પછી ફરી એકવાર સેલિંગમાં 22,000ને આપણે એક વખત, બે વખત અટેમ્પ્ટ કર્યું છે. એટલે 22,000 આજે ક્લોઝિંગ બેસિસ પર જાળવવાની પૂરી કોશિશ હવે છેલ્લા અડધા કલાકમાં તમને જોવા મળવાની છે. 22,000 અત્યારે તો સોફાર એવું લાગે છે શોર્ટ કવરિંગની સિરીઝ જોતા થોડી નફા વસૂલી જે છે તે થઈ હતી. ત્યારબાદ હવે થોડું ફરી એકવાર પરિસ્થિતિ આવી છે એટલે શોર્ટ કવર થતાં તમને જોવા મળશે થોડા ઘણા. પણ હા, 22,000નું લેવલ બહુ મહત્વનું છે આજના દિવસે જળવાઈ રહે તે માટે થઈને. ઉપલા સ્તરો પર તમારા માટે રેઝિસ્ટન્સ જે છે તે સૌથી પહેલાં તો 180 બને છે, જે આપણે છેલ્લે વાત કરી હતી. તે આમાં 22,200 પણ તમે જુઓ જે તમને નેટ તમને જોવા મળી રહ્યા છે. અહીંયાથી એક અવરોધ બની રહ્યા છે. આ 50 દિવસની એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ. આ તરફ નીચેના સપોર્ટ જે છે તમારા માટે તે 21,800ના થાય છે, જે પણ થોડા દૂર છે. એટલે આજે એકદમ રેન્જ બાઉન્ડ તમને અહીંયાથી કારોબાર આ જ કારણે થઈને જોવા મળેલો છે. તો પરિસ્થિતિ આ પ્રમાણે. આવો 15 મિનિટના ચાર્ટ પર નજર કરી લઈએ. 15 મિનિટના ચાર્ટમાં તમને જોવા મળશે કે દિવસની શરૂઆત થઈ ત્યારબાદ વોલેટિલિટી બંને તરફી ટ્રેન્ડ્સ કેવા તમને જોવા મળ્યા હતા. એક તો નાની રેન્જમાં હતા, પણ હા, દિવસની શરૂઆતથી જે કંઈ પણ ઘટાડો આવ્યો તો તે પોઝિટિવિટીમાં કન્વર્ટ થયો અહીંયાથી. ખાસ પહેલી કેન્ડલ જે બની હતી તેમાં. અને ત્યારબાદ તમને તેજી પણ આવતી જોવા મળી હતી. પછી જુઓ એટલી લગભગ મંદી આવતી જોવા મળી હતી તમને અહીંયાથી, જે આ લેવલ્સ બનતા જોવા મળે છે તમારા માટે થઈને. પછી દિવસભર એકદમ સીમિત દાયરામાં કારોબાર છે. જુઓ તમે, નાનકડી મજબૂતી, નાનકડી નબળાઈ, તમને એકદમ દિવસભર સીમિત દાયરામાં કારોબાર. અને અત્યારે થોડી તેજી હું એન્ટિસિપેટ અહીંયાથી જોઈ રહ્યો છું માર્કેટ માટે થઈને, જે ધીરે ધીરે 70-80 અહીંયા સુધી આવી ગયા છે આપણે. અને લગભગ 100નું લેવલ અહીંયા થાય છે કે અહીંયા અત્યારે માર્કેટ છે. અને ટાર્ગેટ છે કે એક વખત 100ને ઉપર ક્લોઝ જો આપી દે તો એ સારી વાત ગણાય. પણ 22,000નું લેવલ પણ બહુ મહત્વનું છે. 22,000નું લેવલ તમારા માટે થાય છે એક્ઝેક્ટ આ લેવલની આસપાસ, જેને વારંવાર તોડવું પડે છે. ત્યાંથી રિકવર પણ થયા છીએ. આવી સ્થિતિમાં આજે આ બહુ જ મહત્વની રેન્જમાં અત્યારે ફિલહાલ નિફ્ટી તમને જોવા મળશે. માફ કરશો. તો આવી સ્થિતિમાં હવે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના ડેટાની વાત કરી લઈએ. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના ડેટામાં સ્પષ્ટ સમજાય છે કે 22,000માં ફાઇટ જબરદસ્ત છે. આ તમે જેટલા પણ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ જુઓ છો તેમાં હાઈએસ્ટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અત્યારે તમને અહીંયા પુટમાં જોવા મળે છે. એટલે 22,000ના પુટને બહુ જલ્દી ગીવઅપ નથી કરી રહ્યા અને 22,000થી તમને વારંવાર સપોર્ટ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ગઈકાલે જે આસાનીથી કહો 22,000નું લેવલ નિફ્ટીએ તોડ્યું હતું તેવું આજે થઈ નથી રહ્યું. તેનું કારણ છે આ
લગભગ 60 લાખ આસપાસના તમને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ પુટમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આ તરફ કોલમાં જુઓ ધીરે ધીરે કરતાં લગભગ 40 લાખ આસપાસના આપણે આવી ચૂક્યા છીએ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના હિસાબથી. સો પલડું હજુ પણ ભારી છે પુટ રાઇટર્સનું, પણ નક્કી ના કહેવાય. જે પ્રકારે આટલા દિવસોનું આપણે સેલિંગ જોયું છે, કોલ રાઇટર્સ જો અહીંયા ઊભા જ છે. આ 22,100 તમારા માટે થઈને, 22,200 તમારા માટે થઈને, કે જે અને ઇવન 22,000 પર પણ તમને કોલ રાઇટર્સ તો હાવી થતા જોવા મળી રહ્યા છે. બસ આ એક સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ છે ડિફેન્ડ કરવા માટે. જો કદાચ 22,000 ગયું તો પછી છે કે નીચે તમારા માટે જે 800નું લેવલ આપણે વાત કરી હતી તે બને છે સપોર્ટ તરીકે. તો આ પરિસ્થિતિ ખાસ ધ્યાન રાખો. તો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના ચેન્જની વાત કરી લઈએ. આજે 22,000માં સિગ્નિફિકન્ટ પુટનું એડિશન તમને જોવા મળશે. જુઓ તમે, આ પુટનું એડિશન અહીંયાથી ખાસ થયું છે. ઓલમોસ્ટ 20 લાખ આસપાસ તમને પુટ આજના દિવસે એડ થતા જોવા મળી રહ્યા છે. સામે કોલ તમે જુઓ તો આજના દિવસે એડિશન જે છે તે 15 લાખ આસપાસનું છે 22,000માં. એટલે ફાઇટ અહીંયા જ તમને 22,000માં યથાવત જોવા મળે છે. અચ્છા, આ તરફ તમને આ બધા જ કોલ રાઇટર્સ પણ તમને સેલિંગમાં આગળ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. કઈ સ્ટ્રાઇક છે? આ 22,100, 22,150 અને આ 22,200 3 સ્ટ્રાઇક છે કે જેની અંદર તમને મેજર સેલિંગ કોલમાં આવતું આજે જોવા મળેલું છે. તો આ છે નિફ્ટીનું ઓવરઓલ સેટઅપ. હવે આવો તમે બેંક નિફ્ટી પર. બેંક નિફ્ટીની વાતમાં ખાસ એક વાત ધ્યાન રાખવા જેવી છે કે આજે નિફ્ટી પોતાના ડેઝ લોથી રિકવર થયો, પણ બેંક નિફ્ટી તમે જુઓ ગઈકાલના જે ડેઝ લો છે અહીંયા આગળ, આ ગઈકાલના ડેઝ લોને તોડી અને આપણે નીચે ગયા છીએ. જુઓ તમે, જે પરિસ્થિતિ બની છે તે અહીંયાથી આ લેવલને આપણે તોડી દીધું અને ત્યાંથી નીચે ગયા છીએ. આજના જે ડેઝ લો બેંક નિફ્ટીમાં બને છે તે તમારા માટે રહેશે 47,300ના, જે ગઈકાલના લોથી પણ નીચે છીએ આપણે. હવે તમારા માટે જ્યારે 50 દિવસની EMA તૂટી ચૂકી છે તો તેની નીચે સતત કારોબાર છે. તો હવે તમારી નજર જોવી જોઈએ તે છે 100 દિવસની EMA, જે થાય છે 47,063. એક વખત હું અહીંયા સ્ક્રીન પર લખી દઉં, 47,063 તમારા માટે હવે એક ઇમિડિયેટ સપોર્ટ બને છે. ઉપરની તરફ તો ઉપરની તરફ આ જ લેવલ છે મહત્વનું, જે તમારા માટે થાય છે 47,700. 47,700ને આજે દિવસમાં એક વખત આપણે અટેમ્પ્ટ કર્યું છે. જુઓ તમે, આ જે ટેલ ઉપર નીચે તરફ તમને જોવા મળી રહી છે, 47,700ની ઉપર આપણે ગયા છીએ પણ ત્યાં ટકી નથી રહ્યા અને બેંક નિફ્ટી ત્યાંથી વારંવાર નીચે આવી રહ્યો છે. તો પરિસ્થિતિ આ પ્રમાણે આ બે લેવલ તમારા માટે મહત્વના અહીંયાથી ખાસ બનતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ નીચેની તરફનો સપોર્ટ છે, ઉપરની તરફ 47,700થી સેલિંગ આવે છે, સપ્લાય આવે છે માર્કેટમાં, તે વાત એવિડન્ટ તમને જોવા મળી રહી છે. એટલે બેંક્સ વધારે નબળા તમને જોવા મળશે. 500ને નીચેનું ક્લોઝ વધારે ખરાબ રહેશે. પરિસ્થિતિ આ પ્રમાણે, ટ્રેન્ડ ઓલરેડી ચેન્જ થઈ ચૂક્યો છે. નજર રાખીએ. આવો 15 મિનિટના ચાર્ટ્સ પર નજર કરી લઈએ. 15 મિનિટના ચાર્ટમાં તમને જોવા મળે છે અહીંયાથી ખાસ પહેલી કેન્ડલ બની તમારા માટે તે આ હતી. ઘટાડા સાથે ખુલ્યા. જે 300નું લેવલ હતું તે ગઈકાલના લો આપણે તોડી દીધા અને ત્યારબાદ ફરી એકવાર તમને સારી રિકવરી આવતી જોવા મળી હતી. રિકવરી બાદ તમને સાઇઝેબલ સેલિંગ પણ આવતા જોવા મળ્યા. અહીંયા પણ રેન્જ નાની છે. જુઓ તમે, એટલી મોટી બહુ રેન્જ નથી, પણ તેમ છતાં પણ તમે જુઓ છો ઉપલા સ્તરોથી સેલિંગ વધારે આવે છે. બાઇંગના એક એફર્ટ છે અહીંયાથી તમે જુઓ આગળ, તો આ બીજો એફર્ટ છે, પણ પછી સફળતા નથી મળી રહી. અને નિફ્ટીમાં જે પ્રકારે થોડી સ્ટ્રેન્થ આવે છે એવી બેંક નિફ્ટીમાં નથી, એ વાત સ્પષ્ટ છે. એટલા માટે જેટલી પણ મજબૂતી આવે છે એમાં સેલિંગ તો તમને આવતું જ જોવા મળે છે. અત્યારે પણ ઇનફેક્ટ જો આપણે વાત કરીએ તો પરિસ્થિતિ આ પ્રમાણે. આ તો નિફ્ટીના પણ ચાર્ટ્સ તમને જોઈ રહ્યા છો. બેંક નિફ્ટીના પણ 15 મિનિટના ચાર્ટ્સ તમે જોશો તો પરિસ્થિતિ તમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનતી જોવા મળશે. તો એક એવિડન્ટ રેન્જ તમને અહીંયાથી ખાસ બનતી જોવા મળી રહી છે આ ચાર્ટ્સની પરિસ્થિતિના હિસાબથી. તો આ નિફ્ટીના 15 મિનિટના ચાર્ટ્સ આપણે જોયા અને બેંક નિફ્ટીના આપણે 15 મિનિટના ચાર્ટ્સમાં તમને એક્શન ભરપૂર જોવા મળશે. પછી ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની વાત કરી લઈએ. ખાસ બેંક નિફ્ટીના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં પરિસ્થિતિ બહુ જ રસપ્રદ બનશે. આજના દિવસે 47,500 પર જબરદસ્ત તમને જે છે તે કોલ રાઇટર્સ આવતા જોવા મળે છે. નિફ્ટીના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના ચાર્ટ્સ છે. આપણે હવે બેંક નિફ્ટીના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના ચાર્ટ્સ પર નજર કરી લઈશું. જે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ છે, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ચેન્જ છે, વોટએવર આપણને જે પોસિબલ હોય તે પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ વાત કરી લઈએ બેંક નિફ્ટી માટે થઈને. તો આ પરિસ્થિતિ ખાસ બનતી જોવા મળી રહી છે. ઇનફેક્ટ હું અત્યારે તમને જો લાઈવ ડેટા આપી દઉં તો બેંક નિફ્ટીમાં તમને જોવા મળશે પરિસ્થિતિ બહુ જ રસપ્રદ છે. બેંક નિફ્ટીમાં 47,500માં તમને કોલ રાઇટર્સ જોવા મળે છે 19.4 લાખ આસપાસના અને 21.6 લાખના પુટ જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે 21,500ના પુટમાં હજુ પણ સપોર્ટ છે, પણ સતત તેને નીચે બેંક નિફ્ટી રહેવામાં સફળ થઈ રહ્યો છે. અત્યારે પણ 450 પર છે. એટલે જો ક્લોઝિંગ 500 નીચે આવી ગયું તો એ ખરાબ રહેશે. આ બેંક નિફ્ટીની વાત તમને અહીંયાથી ખાસ બનતી જોવા મળી રહી છે. તો આ બેંક નિફ્ટીના ડેલી ચાર્ટ્સ જોઈ લીધા આપણે, 15 મિનિટના ચાર્ટ્સ જોઈ લીધા. આ બધાની પરિસ્થિતિ પરથી સેટઅપ ક્લિયર છે. અત્યારે હજુ પણ તમને સેલિંગ આવતું વારે જોવા મળી રહ્યું છે. નિફ્ટીની પણ જો હું કરન્ટલી વાત કરી દઉં તો લગભગ 54-56 પર છીએ. થોડું કવરિંગ આવ્યું છે ન્યૂનતમ સ્તરોથી, પણ તેમ છતાં પણ હા, આજનું ક્લોઝિંગ 22,000ની ઉપર થાય તો એ નિફ્ટી માટે મહત્વનું અને બેંક નિફ્ટી માટે 47,500 મહત્વનું લેવલ છે. ક્વિક બ્રેકનો સમય. વિરામ બાદ આપણે એક્સપર્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, તેમની સાથે ચર્ચા આગળ વધારીએ. બ્રેક બાદ
બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત. ભારતીય માર્કેટ્સ જુઓ તમે, હજુ પણ થોડા નિફ્ટી તો રિકવર થવાની કોશિશમાં છે. બેંક નિફ્ટી નથી, 400 તોડી રહ્યા છીએ, પરિસ્થિતિ ખરાબ. વધુ વાતચીત કરીએ આપણી સાથે લક્ષ્મીશ્રી ઇન્वेस्टमेंटના अंशुल जैन जोड़ा रहा है. अंशुल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका. पिछले हफ्ते हमने बात की, उसके बाद तो बिल्कुल मार्केट की हालत ही ख़राब हो गई, एकदम नीचे धड़ाम करके हम आ गए हैं. गुजरात का फेज़ ख़त्म हुआ, उसके बाद से थोड़ी सी स्थिति ज़्यादा ख़राब हुई है, परसेंटेज वाइज थोड़ा कम रहा. अभी मुंबई में भी वोटिंग बाकी है, अभी सोमवार को भी अलग अलग एरिया हैं जहाँ पर भी वोटिंग होनी है. परसेंटेज टर्म्स में थोड़ा सा वोटिंग कम होने की वजह से मार्केट थोड़ा क्यू लेने लगा है कि इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी. चार्ट्स की भी बात करें, सेंटिमेंट की भी बात करें, कैसे देख रहे हैं अंशुल जी? गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को. देखिए, इंडेक्स के लेवल डिस्कस मतलब इंडेक्स के लेवल केवल लेवल होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन वो लेवल होल्ड होंगे नहीं. इसका कॉन्फिडेंस आपको हमेशा इंटरनल्स ऑफ द मार्केट से आता है. तो इंटरनल्स रीड करना एट क्रिटिकल लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर करंट जंक्चर पे आके इंटरनल्स ऑफ द मार्केट की बात करूं तो जैसे एक मार्केट ब्रेथ पे हम इंटरनल रीड करते हैं कि कितने परसेंटेज में टोटल एनएससी के यूनिवर्स में परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स है वो 20-डे मूविंग एवरेज. क्योंकि अगर मेजॉरिटी स्टॉक्स 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है. करंट सिनेरियो में देखें तो केवल 34% स्टॉक ऐसे हैं एंटायर यूनिवर्स में जो अपने 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं. और लास्ट 2 टाइम्स अगर मैं पिछले केवल 2024 की बात करूं तो 2 बार ऐसा हुआ है जब हम नियरली 30 के नीचे आए हैं. एक बार 20 मार्च को आए थे, वहाँ पे मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया और वहाँ से नया हाई बना था. दूसरी बार हम 28.5 की रीडिंग पे आए थे 18 अप्रैल को. वहाँ से भी आप देखिए स्विफ्ट मोमेंटम लेते हुए मार्केट ऊपर नया ऑल टाइम हाई बनाया था. क्लोजिंग बेसिस पे नहीं बना था, इंटरडे बेसिस पे बना था, लेकिन दोनों बार ऐसा हुआ है कि ऑल टाइम हाई बनाया. और करंट सिनेरियो पे आके हम 28-29 के आसपास की रीडिंग ले रहे हैं. तो यहाँ से भी मार्केट में अच्छी खासी अपसाइड ट्रिगर हो सकती है. दूसरा, अगर सेंटिमेंट इंडिकेटर रीड करें हम एफआईआई के डेटा को, तो एफआईआई के डेटा में अगर नेट इंडेक्स की पोजीशंस अगर हम देखें तो एफआईआई जब भी नेट शॉर्ट जाती है लगभग 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ऑन इंडेक्स फ्यूचर, वहाँ पे मार्केट बॉटम बनाता है. अब करंट सिनेरियो में कल तक की क्लोजिंग के बेसिस पे देखूं तो 1,57,000 करीब कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे इंडेक्स फ्यूचर्स में. और आज का अगर डेटा मिला लूँ, मैं प्रीएम्प्ट कर लूँ, तो लगभग 2 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो जाएंगे. तो इंडेक्स फ्यूचर के लेवल पे मार्केट ओवरसोल्ड होता जा रहा है. नेट इंडेक्स पोजीशन देखूं जहाँ एफआईआई की फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का डेटा मिला लें तो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे हम ओवरसोल्ड होते हैं. 7.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट अगर शॉर्ट होते हैं एफआईआई की तो हम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाते हैं. कल की रीडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन मिला के नेट इंडेक्स की पोजीशन अगर एफआईआई की रीड करें तो 6,30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, यानी हम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशंस के नीचे हैं, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन के आसपास जा रहे हैं. और आज का डेटा अगर इसमें एड अप करें तो समवेयर अराउंड 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हो जाएंगे. तो ऐसा लग रहा है कि हम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशंस में हैं. यहाँ से मार्केट के लिए नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, गुंजाइश कम है, जगह भी बहुत कम है. क्योंकि मेजरली अगर इंडेक्स में कोई भी लेवल ब्रेकडाउन देना है या लेवल का ब्रेकआउट देना है तो एफआईआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और जब इस लेवल पे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है और हम सपोर्ट जोन पे खड़े हैं तो मार्केट में यहाँ फिर नीचे जाने की जगह कम बचती है, अपसाइड ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी आई है. लेकिन प्राइस चार्ट पे आ जाए तो प्राइस चार्ट में ऐसे कोई मेजर सपोर्ट पे हम नहीं खड़े हैं कि यहाँ से बाउंस बैक की मतलब आउटराइट हम ये कहते हैं कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर जाएगा. हालांकि एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि 15 मिनट चार्ट पे निफ्टी में एक हाई लो की फॉर्मेशन दिख रही है और बैंक निफ्टी में ओपनिंग जो लोज हमने बनाए थे उन लोज को स्वीप करके उसके ऊपर चल रहे हैं. तो ऐसा लग रहा है कि लेट शॉर्ट्स जो हैं वो एटलीस्ट आज के सेशन में ट्रैप हो चुके हैं और मंडे से हमको प्रोबेबली इसमें शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है. अगर डाउ जोन्स 150-200 पॉइंट भी ऊपर बंद हो जाता है, 100 पॉइंट भी ऊपर बंद हो जाता है तो हमको एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी मंडे के मार्केट में और शॉर्ट्स एकदम से कवरिंग के लिए आ जाएंगे. तो 2 लेवल में आपको बता देता हूँ. 22,140 निफ्टी स्पॉट पे,
इस लेवल के ऊपर क्लियरली शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगी, तो 22,140 के ऊपर आप आउटराइट इंडेक्स में लॉन्ग ले सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रीएम्प्टिव ट्रेड में क्या होता है, स्टॉप लॉस कटने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। एक कंफर्म ट्रेड मिल जाता है तो 75% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हम सही डायरेक्शन में बैठे हैं। तो 22,140 का वेट कीजिए, उसके ऊपर इंडेक्स पे निफ्टी पे लॉन्ग कीजिए। बैंक निफ्टी में 47,700 का लेवल बनता है, 47,700 निकलता है तो बैंक निफ्टी में भी बाउंस बैक और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी, तो वहां से आपको लॉन्ग पोजीशंस ले लेना चाहिए। तो इंडेक्स एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशंस के आसपास है। आज का ईओडी डेटा प्रोबेबली इस चीज को कंफर्म कर देगा। मंडे से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से सर आपने पूरा जो है वो समा बांध दिया। मैं डेटा भी दिखा रहा था एफआईआईज, और उसके साथ ही साथ आप एफआईआईज की बात कर रहे थे, तो पिछले ये जो मई शुरू हुआ तब से लेकर अब तक आप देखें तो कंटिन्यूस जो सेलिंग हुई है, ज़बरदस्त फिगर्स जो है वो उसके आ रहे थे, तो वो भी आपने साथ ही साथ बात कर ली तो बढ़िया रहेगा। अब क्विक ब्रेक का समय हो चुका है, આપણે એક નાનકડો વિરામ પણ લઈ લઈએ સાથે સાથે, અને વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપણી ચર્ચાને આગળ વધારીશું। બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। આગળ વધીએ અને હવે ખાસ આપણે જે પ્રમાણે ભારતીય માર્કેટ્સનો મૂડ ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છીએ, થોડી થોડી તેજી જુઓ હજુ પણ આવી રહી છે। આવી સ્થિતિમાં अंशुल जी अपनी साथ है। अंशुल जी, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब चर्चा हम यहाँ पर करेंगे जो आपके स्टॉक्स रिकमेंडेशंस हैं आज के, उसके ऊपर सबसे पहले नज़र। देखिए यश जी, मैं ये कहूँगा कि अगर आप मार्केट में इस समय पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत सावधानी से ट्रेड कीजिए और उन्हीं सेक्टर, उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए जो पूरे करेक्शन के अगेंस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ शो किए हैं। दो सेक्टर का नाम मैं आपको ले देता हूँ। पहला है मेटल सेक्टर, दूसरा है ऑटो सेक्टर। तो इन दो सेक्टर्स में तेजी दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं दूसरे मीडिया चैनल पे लाइव था तो मैंने हिंद कॉपर में बाई दिया था 368 के लेवल पे। 374 ऑलरेडी चल रहा है। इस स्टॉक में मुझे अभी मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिख रहा है। 4 दिन से शॉर्ट पोजीशंस बनी थी, उनके एंकर वीवैप के ऊपर आगे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हिंद कॉपर आपको करंट मार्केट प्राइस 374 से बाई कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 365 का बनेगा और इमीडिएट टारगेट 390 395 का रहेगा। और एक बार जब हम 395 400 वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को पार कर लेंगे तो स्टॉक में 425 तक की रैली बनेगी। तो प्रोबेबली इस ट्रेड को आप इंट्राडे या एक दिन का ट्रेड ना मान के अगर नेक्स्ट वीक के हिसाब से ट्रेड माने तो 420 425 तक के लेवल्स आपको आराम से मिल सकते हैं। दूसरा ऑटो सेक्टर से बाय दे देता हूँ, क्योंकि यही दो सेक्टर हैं जहाँ पे चीज़ें आउट परफॉर्म करती हुई दिख रही हैं। हीरो मोटोकॉर्प में बाइंग कर सकते हैं, 4880 चल रहा है। 4850 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 4940 4950 तक के टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये दो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, इन दो स्टॉक्स में आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, इनके ऊपर नजर रहेगी। हमारे दर्शकों को बता दें, हीरो मोटोकॉर्પ માટે થઈને તમને 4850ના સ્ટોપ લોસ સાથે 4940 4950ના ટાર્ગેટ્સ બની રહ્યા છે। 4850ના સ્ટોપ લોસ સાથે હીરો મોટોકॉर्प ખરીદવાની સલાહ, 4940 50ના ટાર્ગેટ્સ। અને મેટલમાંથી હિન્દ કોપર તમને સલાહ બની રહી છે અહીંયાથી 365ના સ્ટોપ લોસ સાથે 390 95ના ઇમિડિયેટ ટાર્ગેટ્સ છે અને આગળ થોડા બ્રોડ બેઝ 425ના પણ ટાર્ગેટ્સ તમને બનતા જોવા મળી રહ્યા છે। તો હિન્દ કોપર તમે અહીંયાથી ખાસ ખરીદી શકો છો અને હીરો મોટોकॉर्प ખરીદવાની સલાહ। બંને સેક્ટર જે છે તેમાં તેજીના ચાન્સીસ છે, સંકેતો હજુ પણ યથાવત છે, તો અહીંયા તમારી નજર જરૂરથી હોવી જોઈએ। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारा स्टॉक जो हमारे लिस्ट में आज है वो है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स। उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ के आया है कुछ 20.7% अराउंड। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि टी&डी और इसके अलावा बिल्डिंग और फैक्ट्री यानी कि B&F सेगमेंट जो है उससे एक काफ़ी अच्छा जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो इम्प्रूव हुआ। इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वहाँ से भी काफ़ी हम देख रहे हैं ऑर्डर्स आते हुए देखने मिल रहे हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स में आज हमें देखा है इक्विटास ने कुछ बाय रेटिंग भी दिया है, 1405 के कुछ टारगेट्स हैं। आप चार्ट्स पर कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए थोड़ा सा एक्सटेंडेड कैटेगरी में आएगा स्टॉक। लगभग 8 महीने हो चुके हैं स्टॉक को रैली करते हुए। 609 लेवल से लगभग 1200 के लेवल ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 1300 का हाई बना है, 1298.8 टू बी प्रिसाइज। डबल हो चुका है स्टॉक। और आप करंट मंथ में वीकली चार्ट पे अगर देखें तो कम्प्लीटली 180 डिग्री रिवर्सल की फॉर्मेशन है। इसकी जब रैली स्टार्ट हुई थी तो सिमिलर इसका उल्टा पैटर्न था। लोएस्ट पॉइंट पे वीक क्लोज हुआ था, नेक्स्ट वीक में
ब्रेकआउट दिया था हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज करके, और वहां से रैली लेते हुए 1300 तक आया है। अब उसी का एकदम एग्जैक्ट रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, तो ये अब करेक्शन अपना स्टार्ट कर रहा है। पुल बैक में समवेयर अराउंड 1075 तक ये स्टॉक आ सकता है, तो अगर आपके पास है तो इमीडिएटली स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। लोअर लेवल्स पे आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लोअर लेवल पर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं, तो इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। सर नेक्स्ट एशियन पेंट्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नंबर्स आए यहाँ पर भी 1.3% अराउंड ऑड कुछ प्रॉफिट बढ़ा है। उनका मुनाफा 1275 करोड़ रुपए हो गया Q4 में। उनकी आमदनी जो है वो भी थोड़ी सी कम हुई है, 8730 करोड़ रुपए हो गई। वॉल्यूम ग्रोथ पर्टिकुलरली इम्पैक्ट है और ये सबसे बड़ा कंपोनेंट रहता है एशियन पेंट्स का, और जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी अनुमान से कम हैं। और सिटी की ओर से कुछ सेल रेटिंग भी आई है आज यहाँ पे, 2600 के कुछ टारगेट उन्होंने दे दिए। क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सारे फैक्टर्स नेगेटिविटी की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन चार्ट्स कैसे हैं एशियन पेंट्स के, इसके ऊपर भी हम नज़र करते हैं अंशुल जी। देखिए, एशियन पेंट्स में अगर आप देखें तो 41 महीने हो चुके हैं स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है, एक बड़ी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। लोअर एंड है रेंज का 2700 के आसपास, अपर एंड है रेंज का 3500 के आसपास, और आप देखिए रेंज के लोअर एंड पे ये फेल्ड लो की फॉर्मेशन दे रहा है। 3 महीने की टाइट रेंज थी, 2 महीना तो इनसाइड बार था, और तीनों महीने के लो के नीचे आज कल इसमें क्लोज किया था, और आज के सेशन में ये रिवर्सल करके ऊपर आया है। तो ये प्राइमरी साइन ऑफ रिवर्सल है स्टॉक में, बल्कि आपको लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो वीक लॉन्ग्स थे उनको शेक करा दिया है। जो एग्रेसिव शॉट्स, जो प्रीएम्प्टिव शॉट्स लेते हैं वो अब ट्रैप्ड है। यहाँ से 2930 2960 तक की शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, और अगर इस शॉर्ट कवरिंग में स्टॉक 3000 का लेवल निकाल देता है तो फिर इसका स्विंग हाई 3500 का टारगेट खुल जाएगा। बट प्राइमरली आपको 2960 के टारगेट के लेते हुए स्टॉक को फिलहाल लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग करने के लिए इसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर से होनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक एशियन पेंट्स हमारे ध्यान पर। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है वो है विजया डायग्नोस्टिक्स। एक तो रिजल्ट्स आए हैं और इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा सेगमेंट के हिसाब से भी बात करना चाहूँगा। पहले रिजल्ट्स हम बता दें दर्शकों को। आय जो है उनकी वो 28% बढ़ के 155 करोड़ रुपए आई हैं। प्राइजेस पर्टिकुलरली विजया डायग्नोस्टिक्स के बढ़ गए हैं, वॉल्यूम में ग्रोथ है, इसकी वजह से उनकी आय काफ़ी अच्छी सुधरी है, और उनका मुनाफा जो है वो 22% और 22% बढ़ के 33 करोड़ रुपए हो गया है। मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुए हैं। ये सारे कंपोनेंट्स बताते हैं कि किस तरह से ये सारी कंपनियों में थोड़ा सा रिवाइवल आया। 2 साल के कुछ 11 जो हब्स, इनके बड़े ऑर्डर बोलते हैं जिन्हें, और हब्स एंड स्पोक्स के जो एक्सपेंशन की प्लानिंग भी है इनकी। और सर सेक्टर के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये सारे डायग्नोस्टिक्स, लाइफ रिलेटेड जो सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, सर्विसेज देती हैं, ऐसी कंपनियों में ये सेक्टर में थोड़ा सा बज़ भी है। तो इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, और विजया डायग्नोस्टिक्स के चार्ट भी आपको कैसे लग रहे हैं ये भी हमें बताइए। देखिए, ये जी अगर मंथली चार्ट पे अगर देखें तो विजया डायग्नोस्टिक ये जब से लिस्टिंग हुआ था थोड़ा सा शैलो डाउन ट्रेंड में था। पूरा एक राउंडिंग कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन दिया है। 31 मंथ्स लगे हैं, 31 महीने, यानी ऑलमोस्ट अगर पकड़ लें तो 2.5 साल से ऊपर का समय इसने स्पेंड किया है प्रॉपर बेस बनाने में। और करंट मंथ में इसका ब्रेकआउट आया है, मई के महीने इसमें करंट मंथ में इसका ब्रेकआउट आया है, तो इस स्टॉक में थोड़ा सा लॉन्ग पोजिशंस लेके चल सकते हैं। यहाँ से 15 से 20% तक की अपसाइड आपको आराम से मिल सकती है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर इसी सिमिलर सेक्टर में आपको रहना है तो, और लार्ज कैप स्पेस में रहना है तो लाल पैथ लाइव ले सकते हैं। बट आई वुड अगेन सजेस्ट, क्योंकि 20 डे परसेंटेज स्टॉक अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज अपने बॉटम एंड पे है, तो यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रहेगी। तो इस स्टॉक को बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस से आपको बाई कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीपर लगाइए, 690 क्लोजिंग बेसिस का। ऊपर में 1300 1350 तक के टारगेट आपको 3 से 4 महीने में मिल जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस मांग रहा है स्टॉक, तो पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ स्टॉक को लॉन्ग कीजिए, और 1300 तक का टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ये वोलेटिलिटी मिड कैप वाली आप नहीं झेल पाते हैं तो फिर लाल पैथ लैब के भी चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं। बट आउट ऑफ द टू अगर मुझे लेना होगा, मैं एनी डे विजया डायग्नोस्टिक्स सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, विजया डायग्नोस्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टॉक, नज़र ज़रूर रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक सर पीएनबी। नंबर्स आ गए, सरकारी बैंक्स में थोड़ा एक्शन भी है। पीएनबी के कुछ जो ब्याज से आमदनी यानी कि एनआईआई है वो 9% बढ़ के 10,363 करोड़ रुपए हो गए।
उनका मुनाफा कुछ 2 मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ा है, 2 टाइम्स बढ़ा है उनका, 2 गुना हो गया, 3010 करोड़ रुपए हो गया। एनपीए काफ़ी अच्छे से सुधर रहे हैं, अब तो ऑलमोस्ट नेट एनपीए आप जीरो के बहुत करीब आते हुए देख रहे हैं। काफ़ी अच्छे नंबर्स होने के बाद भी इनके वैल्यूएशंस के चक्कर में कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट अंशुल जी ऐसे आए हैं जहाँ पे सेल रेटिंग है, एक तो कोटक की ओर से सेल रेटिंग है और 105 की टारगेट है, निर्मल बैंक की तरफ से भी आप देखें सेल रेटिंग है, 110 के टारगेट हैं। आप चार्ट पर कैसे देख रहे हैं, क्या आपको भी ओवर स्ट्रेच्ड लग रहा है पीएनबी? देखिए, इसमें एटलीस्ट जो मंथली चार्ट डेवलप हो रहा है, मंथली कैंडल जो डेवलप हो रही है, वो कम्प्लीटली 180 डिग्री रिवर्सल कैंडल बन रही है। लास्ट मंथ हम ओपन एकदम लो पे हुए थे और हाई पे क्लोज किए थे, और अभी मई में हमको 4 ही 5 ट्रेडिंग सेशन हुआ है और पूरे अप्रैल की गेन्स हम इरोड कर चुके हैं और अप्रैल के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये करेक्शन का शुरुआत है। केवल 9 महीने में स्टॉक ने 174% की रैली ली थी, और अगर मैं पूरा जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है वहाँ से देखूँ तो 22 महीने में 427% ये स्टॉक चला है और बिना किसी करेक्शन के चला है। तो ये फर्स्ट मंथ ऑफ करेक्शन है, थोड़ा सा डीपर रहेगा। प्रोबेबली ये स्टॉक अगर 104 105 के लेवल टेस्ट कर ले तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं रहूँगा। मैं ये कहूँगा स्टॉक से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। बेटर नेम्स अवेलेबल है मार्केट में, उनमें जाके ट्रेड कर सकते हैं। अगर कैपिटल शिफ्ट ही करना है तो अभी विजया हमने डिस्कस किया था, विजया का बहुत बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और ब्रेकआउट अभी जस्ट आना ही स्टार्ट हुआ है। तो अपनी कैपिटल को वहाँ शिफ्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो नीचे प्राइस एरोड होगी और उसके बाद जो बेस बनने में टाइम जाएगा, इस पूरी फ्रस्ट्रेशन से आप बचे रहेंगे और सेम टाइम पीरियड में थोड़ा सा पैसा भी कमा लेंगे। बढ़िया है, पूरा रैशनल जो है आपका वो बहुत ही परफेक्ट सेट होता है। विजया बैंक इंटरेस्टिंग है, विजया डायग्नोस्टिक्स की पहले बात की वो याद आ गया, तो इसके ऊपर नजर रहेगी। मार्केट क्लोज हो रहे हैं सर, फटाफट ही आज के जो लूजिंग सेक्टर्स हैं वो फटाफट हम आपको बता देते हैं। पहले टॉप गेनिंग सेक्टर्स बता दें। एफएमसीजी एक सेक्टर रहा है जो पूरे हफ्ते भर में काफ़ी अच्छा चला है। આ અઠવાડિયે એફએમસીજી સેક્ટરમાં સારી તેજી જોવા મળી, 1.5% આસપાસની। આ સિવાય નિફ્ટી ઓટો તમે જોઈ લો, બહુ સરસ તેજી આ અઠવાડિયે જોવા મળી છે, લગભગ 1-8% આસપાસ, જેમાં કોમ્પોનન્ટ્સ તમને કહીએ હીરો મોટોકોર્પ જોવા મળ્યો 8% આસપાસ, તમને હીરો મોટોકોર્પ આ અઠવાડિયે ચાલ્યો છે। આપણે સર સાથે વાત પણ કરી રહ્યા હતા, તેમણે કહ્યું કે ઓટો સ્ટોક્સમાં તેજી હતી। ટાટા મોટર્સ આ અઠવાડિયે કંઈક 2-2.5% ચાલી ગયો। આ અઠવાડિયે ટ્યુબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં લગભગ 2%ની તેજી જોવા મળી, મારુતિ સુઝુકી લગભગ 1%ની તેજી જોવા મળી, આઈશર 0.5%ની તેજી તમને જોવા મળી। આ અઠવાડિયે ટોપ લૂઝિંગ સેક્ટર્સ કયા હતા તમે જુઓ, એના કોમ્પોનન્ટ્સ પણ બતાવીશું। સૌથી પહેલાં તમે જુઓ ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક લગભગ 2% આસપાસની વેચવાલી જોવા મળી। ક્લોઝિંગ તમને થઈ ચૂક્યું છે, પ્રોવિઝનલ ક્લોઝ બતાવી દઈએ 22,054, 22,050ની ઉપર તો સેટલ લગભગ થઈ જશે એવું લાગે છે, પણ 47,500 ને નીચેનો ક્લોઝ છે બેંક નિફ્ટીનો, જે વધારે ખરાબ થોડું ગણાશે। તો આ પરિસ્થિતિ પર એક વખત નજર કરીએ। આજનું ક્લોઝ જોઈ લો તમે, 21,107 પર તમને અહીંયાથી ક્લોઝ જોવા મળે છે મિડ કેપ સિલેક્ટનું। આ સિવાય મિડ કેપ તમે જોઈ લો લગભગ 1% આસપાસનું ક્લોઝ તમને મજબૂતી સાથે જોવા મળે છે। સ્મોલ કેપ તમે જોઈ લો 0.5% આસપાસની મજબૂતી સાથેનું ક્લોઝ અહીંયા જોવા મળે છે। તો ઓવરઓલ આજના ભારતીય માર્કેટ્સના ક્લોઝ તમને બનતા જોવા મળી રહ્યા છે, નજર આપણે રાખતા રહીએ। આ તરફ તમે નજર કરો, વોલ્ટિલિટી ઇન્ડેક્સનું આજનું અપડેટ તમને કહીએ। 19 પર ગયા હતા એક સમયે, ત્યાંથી ફરી 18 પર આવ્યા અને 18.60નું ક્લોઝ છે, એટલે એકદમ પરફેક્ટ બેલેન્સ છે। બહુ કંઈ જે પ્રકારે આટલા દિવસથી વિક્સ વધતો જોતા હતા એવું નથી, આજે થોડો સેટલ થઈ ગયો વિક્સ એવું આપણે કહી શકીએ, એટલે આ પરિસ્થિતિ ખાસ ધ્યાન રાખો। આ સિવાય તમે નજર કરો, ઓવરઓલ પરિસ્થિતિ જે છે તે પ્રમાણે આપણે ફરી એકવાર જે ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ હતા તેના પર આવીએ। બેંક નિફ્ટી આ અઠવાડિયે કંઈક 3% ઘટી ગયો, નિફ્ટી ઘટી ગયો, નિફ્ટી મિડ કેપ 100 તમે જુઓ 3-3.25% આ અઠવાડિયે ઘટી ગયો છે, અને સ્મોલ કેપમાં પણ તમને પરિસ્થિતિ ખરાબ રહી। સરકારી બેંક્સ બહુ ખરાબ રીતે પીટાયા હતા, 5-5.25% આસપાસની વેચવાલી તમને સરકારી બેંકમાં જોવા મળી, જેમાં કેનરા બેંક તમે જુઓ ટોપ લૂઝિંગ કાઉન્ટર છે। આ અઠવાડિયે કેનરા બેંકમાં 12% આસપાસની મેજર વેચવાલી જોવા મળી। હમણાં જ વાત કરતા હતા આપણે પીએનબીની, આ અઠવાડિયે કંઈક 9% આસપાસની વેચવાલી તમને પીએનબીમાં બનતી જોવા મળી। તો જુઓ બધી જ સરકારી બેંક તમારા સ્ક્રીન પર આવે છે। પીએનબી તમે જુઓ, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પર નજર કરો, આ અઠવાડિયે કંઈક 9.5% આસપાસ, જુઓ તમે 7.5% આસપાસ, 8.5%, માફ કરશો, 8.5% આસપાસ વેચવાલી જોવા મળી। બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર પર નજર કરો, 7.5%ની વેચવાલી, સેન્ટ્રલ બેંકમાં 7%ની વેચવાલી, યુનિયન બેંક, આઈઓબી, નિફ્ટી, બધા જ નિફ્ટી સરકારી બેંકના સ્ટોક્સ કે જેમાં તમને વેચવાલી જોવા મળી। આ સિવાય સરકારી એન્ટરપ્રાઇઝ પીએસઈ ની અંદર પણ તમને પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝમાં વેચવાલી હતી। ઇન્ડેક્સ કંઈક 5-5% ઘટી ગયો,
પીએફસી 13-13% ઘટી ગયો આ અઠવાડિયે, બીએચઈએલ 10% વીકલી ક્લોઝ છે ઘટાડાનું, આરઈસી તમને જોવા મળ્યું લગભગ 9% નીચે, એલઆઈસી, આઈઓસીએલ તમે જુઓ, ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન ત્યાં વેચવાલી જોવા મળી, સેલ, એચપીસીએલ, ઓએનજીસી મેટલ અને સાથે સરકારી કંપનીઓ જે ઓઇલ અને ગેસ સેક્ટર સાથે એનર્જી સાથે જોડાયેલી છે આ બધામાં જબરદસ્ત વેચવાલી તમને જોવા મળી। तो पहला तो भारतीय मार्केटना क्लोज पर रिएक्शन ले लीजिए। अंशुल जी, ओपनिंग कमेंट्स में तो आपने बताया ही था, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी का क्लोज थोड़ा कंसर्न मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, जो 47,500 के नीचे आज क्लोज हुआ है और निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का भी रहा है आज बैंक निफ्टी। थोड़ा सा समझ लेते हैं आज के क्लोज को सर। और मिड कैप स्मॉल कैप की हमने बात नहीं की अब तक में, काफ़ी अच्छा एक रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखा है, यहाँ से फिर से एक बार बाउंस हमें देखा है आज। तो क्लोजिंग के ऊपर पहले तो आपके कमेंट्स सर। देखिए, अगर क्लोजिंग की बात करें तो थोड़ा सा रिलेटिवली वीक था बैंक निफ्टी, जी। लेकिन जनरली अब मार्केट में देखिए 3 to 5 बार्स की मूव होती है और हम ऑलरेडी 7 कंटिन्यूस डाउन डेज लेके क्लोज किए हैं बैंक निफ्टी में। तो कोई भी चीज़ एकदम से टू द मून नहीं जाती है और एकदम से कोई भी चीज़ ऐसे कंटिन्यूस नहीं गिरती है, बाउंस बैक आते रहते हैं। और वैसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी अगर देखें तो स्ट्रॉन्गर एक रेंज में थे, तो 60 डाउन डेज एक एक्सट्रीम होता है, यहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 दिन की बाउंस बैक बनना लाजमी है। मंडे को अगर आज के लोज के नीचे अगर एक फेल्ड लो हैमर काइंड ऑफ कैंडल मिल जाती है तो इमीडिएटली लॉन्ग कर लेना चाहिए, नहीं तो जो लेवल्स स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किए थे जिनके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आनी है, उन लेवल्स का वेट कीजिए, ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग कीजिए। बट यहाँ से अब शॉर्ट की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि अगर हम डेटा स्टडी करें तो एफआईआई का डेटा ओवरसोल्ड है, मार्केट के इंटरनल स्टडी करें तो वो ओवरसोल्ड है। प्राइस एक्शन पे देखें तो 7 डाउन डेज हो चुका है, जनरली 3 to 5 बार्स का मूव होता है, ऑलरेडी 7 डाउन बार्स हैं। निफ्टी पे भी 4th डाउन डे है, तो पूरी तरीके से मार्केट ओवरसोल्ड दिख रहा है। यहाँ से मैं शॉर्ट के लिए बिल्कुल आपको मना करूँगा, लॉन्ग नहीं भी करना है तो एक बार छोड़ दीजिए, लेकिन शॉर्ट यहाँ से नहीं करना है। बाउंस बैक प्लेयर्स का यहाँ से मीन रिवर्जन जो प्लेयर्स हैं वो मंडे एक्टिव रहेंगे, तो 1 से 2 दिन की यहाँ बाउंस बैक बनती हुई दिख रही है। शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि मैं कहूँगा कम क्वांटिटी में प्ले कीजिए, लेकिन लॉन्ग साइड में बाउंस बैक में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, लॉन्ग साइड पर बाउंस बैक में पार्टिसिपेट करना रहेगा, ये है हमारा फोकस अब आने वाले वक्त के लिए। मिड कैप स्मॉल कैप भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं सर। हम सेक्टर स्पेसिफिक सबसे पहले बात करते हैं सरकारी कंपनियों की। सरकारी बैंक्स की तो हमने बात की, लेकिन इस हफ्ते सरकारी जो एंटरप्राइजेज हैं, पीएसईज हैं पर्टिकुलरली, उसमें काफ़ी मुनाफा वसूली जो हुई थी, क्योंकि इलेक्शन के रिलेटेड सेंटिमेंट्स होते हैं, सरकारी कंपनियों में ही सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन इसमें पीएफसी, आरईसी ये 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होते हुए नजर आए, तो इनके ऊपर हमारी नज़र। वीकली क्लोज कैसा देख रहे हैं, डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स पे क्या फॉर्मेशंस, पीएफसी, आरईसी? अंशुल जी। देखिए, एक मिड कैप इंडेक्स छूट गया था, वो पहले डिस्कस कर लेते जी हैं। जी सर। मिड कैप इंडेक्स में अगर आप देखें तो एक मेजर सपोर्ट था जो मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड होती है, 10,943 फ्यूचर्स पे मेजर सपोर्ट था, और 4 दिन से हम उसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। और आज के सेशन में देखें तो 3 दिन के लोज के नीचे मार्केट सुबह खुला था, वहीं पे हैमर रिजेक्शन कैंडल थी और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे आगे क्लोज किया। हालांकि ये थोड़ा सा स्ट्रेच करके 950 के ऊपर क्लोज करता है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता, लेकिन जिस हिसाब से 3 दिन के लोज के नीचे फेल्ड लो देके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे क्लोज किया है, वो भी अपने आप में सेटिस्फैक्टरी लेवल है। तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने की गुंजाइश काफ़ी हाई है, जो मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रही है, इसमें शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने की काफ़ी बड़ी संभावना है। और हमने ब्रेड ऑलरेडी डिस्कस की कि 35% के आसपास है, तो वहाँ भी बीट एंड डाउन स्टॉक्स में बाउंस बैक और स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। मैं ये कहूँगा कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट्स में आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपके लिए मौके बनेंगे मार्केट में पैसा कमाने के। पीएफसी आरईसी की बात करें तो पीएफसी में जो वीकली कैंडल है वो काफ़ी नेगेटिव क्लोज हुई है, हम नियर लोज ऑफ द वीक आके क्लोज किए हैं। लास्ट वीक में बड़ी वाइड रेंज बुलिश कैंडल थी, तो लगभग हर कोई लॉन्ग था। करंट वीक में गैप के साथ उसको एकदम से नीचे खोला, ट्रैप कर दिया है, लेट जो बुल्स थे उनको कम्प्लीटली ट्रैप कर दिया है। अब यहाँ से जो मेजर सपोर्ट बन के आता है पीएफसी में वो है 2 हफ्तों का लो 403 ऑड लेवल्स पे, राउंड फिगर 400 पकड़ लीजिए। 400 अगर ये स्टॉक होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर इसमें बड़ी करेक्शन, बड़ी डाउन मूव आती हुई दिखेगी 340 345 ऑड लेवल्स तक। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर 400 रुपये निकलता है स्टॉक में तो आपको इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए, दोबारा इसको सोचना नहीं चाहिए। आरईसी रिलेटिव टर्म्स में थोड़ा सा स्ट्रांग है, लेकिन वीकली कैंडल इनसाइड बार और नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, जबकि लास्ट वीक वाइड रेंज बुलिश कैंडल थी।
तो ये भी अपने आप में नेगेटिव प्राइस एक्शन है, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं है जितना पीएफसी में है। आरईसी अपने एंकर वीवैप के सपोर्ट पे क्लोज किया है, तो यहाँ भी 490 और 500 का जो लेवल है ये प्रोबेबली होल्ड होगा। अगर 500 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है तब फिर आप लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो इस स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है 545 550 तक बाउंस बैक करने की। ठीक है, नज़र रहेगी यहाँ पर सरकारी कंपनियों के पूरे एक्शन पर नज़र हमारी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी बैंक्स की तो हमने बात की, निफ्टी ऑटो में जो आपने बात की है उसके ऊपर हम फिर से एक बार थोड़ा सा दोहराएंगे और स्टॉक स्पेसिफिक हमारी नज़र जो यहाँ पर है वो सबसे ज़्यादा है हीरो मोटोकॉर्प पे। अब सवाल ये है कि हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा सा स्लो मूविंग रहता है, वीकली बेसिस पर रिजल्ट के दम पे अच्छी मूवमेंट दे दी, क्या ये थोड़ा सा थकना चाहिए या अभी भी आपको लगता है मूव काफ़ी अच्छी रहेगी? क्योंकि वीकली बेसिस पे 8% हीरो मोटोकॉर्प चल चुका है सर। देखिए, अभी शो के स्टार्ट में जब आपने जी। कॉल्स पूछे थे तब मैंने हीरो मोटो को अब बाई दिया है। ओके। रिलेटिव स्ट्रेंथ है केवल और केवल ऑटो सेक्टर में और मिडिल सेक्टर में। बाकी आप देखिए सारे सेक्टर मार्केट के फॉल के साथ पिटते हुए दिखे हैं। एफएमसीजी आपको तेज जरूर दिख रहा है, लेकिन एफएमसीजी ऑलरेडी 4 महीने की डाउन मूव के बाद हल्का सा बाउंस बैक किया है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के टर्म्स में बात करूं कि मार्केट गिरा है, लेकिन यहाँ पे प्राइजेस ऊपर ही गई हैं। तो हीरो मोटो को अब सबसे अच्छा लग रहा है। बाकी ऑटो के सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, मेटल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और अब लग रहा है कि आईटी में थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। तो अगर ऑटो पैक में ट्रेड का आप स्ट्रेंथ ट्रेड कर रहे हैं तो ऑटो पैक में ट्रेड कीजिए। ऑटो पैक में हीरो मोटो कॉर्प में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, 5,5200 तक ये स्टॉक अभी अप मूव दे सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन ही देखनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ऑटो की हम बात कर रहे हैं तो एक टाटा मोटर्स पर भी नज़र है सर। अब तो थोड़ी सी ही देर में नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन एंटिसिपेशन तो ऐसे हैं कि अच्छे नंबर्स ही आने चाहिए। तो मंडे को ये भी रिस्पांस एक का देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर है ऐसा अभी, क्योंकि कुछ देर बाद नंबर्स आएंगे तो अनुमान ये कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छे नंबर्स आएंगे। तो किस प्रकार के लेवल्स मंडे को आप एक्सपेक्ट करेंगे? क्योंकि आज के दिन में तो हमने 2% और कुछ तेज़ी देखी है, लेकिन मंडे के लिए अभी नंबर्स आ जाएं एक बार, थोड़ा सा ओवरहैंग है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर चार्ट के ऊपर नज़र रखें, किस प्रकार के लेवल्स रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पे आप देखेंगे टाटा मोटर्स में? देखिए, टाटा मोटर्स में ऑलमोस्ट लास्ट वीक लो के नीचे कंप्लीटली वीक लॉन्ग्स को शेक करा के और एग्रेसिव शॉर्ट्स को पोजीशन बना के स्टॉक कंप्लीटली बेयर्स को फेल किया है और स्विंग हाई लास्ट वीक के हाई के ऊपर आगे क्लोज किया है। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव मिल सकती है 1065 से 1070 तक, और ओवरऑल 1090 तक भी ये स्टॉक एक्सटेंड कर सकता है। तो मंडे के सेशन में अगर आपको बाइंग करना है, हीरो मोटो का बेस्ट चॉइसेस रहेगी। उसके बाद सेकंड बेस्ट काउंटर जो बन के आ रहा है वो टाटा मोटर्स का है। ओके, टाटा मोटर्स दूसरा बेस्ट चॉइस जो है वो अंशुल जी की तरफ से, तो इसके ऊपर ज़रूर हमें नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक आज हमारे लिस्ट में था सर, वो था पेटीएम। बहुत दिनों बाद एक सरप्राइज़ दिया है। कॉन्स्टेंटली 10 दिन की जो एक मंदी चल रही थी यहाँ पर, उसको ब्रेक लग गया आज और 5% की अपर सर्किट लगी। तो रीज़न एक टेक्निकल ये भी हो सकता है कि इतने दिन से कम हो रहा था, आज एक अचानक से बाइंग आ गया, लेकिन न्यूज़ भी थे साथ ही साथ। जो आदित्य बिरला फाइनेंस है उनसे पेटीएम की जो लोन चल रही है, उसमें कुछ लोन की जो गारंटी है उसको रिवॉक कर दिया है उनकी ओर से। ये कुछ क्लैरिफिकेशन आए थे पेटीएम की तरफ से, इस वजह से आज कुछ बायर सर्किट देखने मिले हैं। सो ऑब्वियसली सर्किट वाले स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, लेकिन लंबी जो एक सेलिंग है उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा बाइंग आई है। टेम्पररी है, परमानेंट है? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं सर आपको 197 यानी कि पेटीएम? अंशुल जी। देखिए यशी, लास्ट वीक भी लास्ट फ्राइडे भी अपनी स्टॉक पे चर्चा हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि स्टॉक से आप बिल्कुल दूर रहिए। तब ये 370 पे क्लोजिंग थी और आप देखिए वहाँ से 310 का लो बना के हल्का सा बाउंस बैक किया है। अब ये बाउंस बैक इसीलिए आया है कि इसका ऑल टाइम लो जो 12 फरवरी 2024 को वाले वीक में बना था वो 318 का था। तो उसी लेवल के आसपास थोड़ी सी मीन रिवर्जन या पुल बैक कह सकते हैं, जो अगेन 360 370 तक एक्सटेंड कर सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखें तो स्टॉक बहुत वीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हैं और हर तरह की नेगेटिव न्यूज़ फ्लो कर रही है। तो मैं कहूँगा बेटर नेम्स हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो इसमें उलझने की जगह इसको अवॉइड कर देना चाहिए। टेक्निकली स्टॉक में स्विंग लो के नीचे रिजेक्शन आया है। तो अगर केवल टेक्निकल्स की बात करूं तो 438 तक ये स्टॉक अपसाइड दिखा रहा है। बट आई वुड सजेस्ट कि आपके पास है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, फ्रेश बाई मत कीजिए। आपके लिए क्वालिटी नेम्स अवेलेबल है मार्केट में, वहाँ ट्रेड कीजिए।
ठीक है, डेफिनेटली इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए क्योंकि और सारे ऑप्शंस हैं तो उनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। वीकली निफ्टी 500 के गेनर्स में एक नाम उभर कर सामने आ रहा है और वो है जुपिटर वैगन्स। सर आइडियली हम डिस्कस नहीं करते हैं लेकिन आज करें क्योंकि 19% चल गया और आज ही के एक दिन में कुछ 15% चला है और हफ्ते भर में तो कुल मिलाकर 19% की मूव है। सो 497 500 के पास से थोड़ा सा अटका है, थोड़ा समझना पड़ेगा 500 का लेवल कैसे देख रहे हैं और नीचे जो सपोर्ट आया कुछ 428 आसपास से आज बाइंग हुई है तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र होनी चाहिए सर। जुपिटर वैगन्स देखिए, ये सी जुपिटर वैगन अगर आप शो पर डिस्कस नहीं करते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये उन उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जिसने पूरी रेलवेज में जो सेलिंग आई थी उसको झेला है और 35 में हफ्तों का 35 वीक्स का एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न बना के चला है। लास्ट वीक में इनसाइड बार थी, करेंट वीक में हमने उस इनसाइड बार के पहले लो को तोड़ा, वीक लॉन्ग्स को शेक कराया, उसके बाद इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से स्टॉक 600 रुपये तो बहुत आराम से दिखा सकता है। उस 600 आने पे हम रिव्यू करेंगे क्योंकि इतने लंबे टारगेट्स जनरली दिए नहीं जाते हैं, बट यहाँ से 600 तक का टारगेट मिल रहा है। 600 पे मैं कहूँगा प्रॉफिट बुक करने की जगह आप किसी एक्सपर्ट से स्टॉक को रिव्यू करा लीजिएगा, हो सकता है कि अपसाइड और एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। जुपिटर वैगन्स काफ़ी अच्छा मूव हमें यहाँ पर देखने मिला है तो इसके ऊपर ज़रूर हमारी नज़र होनी चाहिए। अच्छा, कुछ सरकारी एंटरप्राइजेस की पहले हमने पीएसई की बात की थी, उसमें से एक बीएचईएल की बात करना चाहेंगे सर, भेल की, क्योंकि 10% इस हफ्ते कम हुआ है और सरकारी कंपनियों का जो पहले आपने रैशनल दिया उसमें ये चार्ट्स के हिसाब से भेल कहाँ फिट होता है उसके बारे में बात करनी चाहिए हमें। देखिए, बीएचईएल में भी ऑलमोस्ट एक रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन है। लास्ट 2 हफ्ते में जो रैली ली थी और स्पेशली लास्ट वीक में जो पूरी रैली थी 9.5% की, उसको कम्प्लीटली स्टॉक ने इस वीक में रिवर्स कर दिया है। तो ये टॉपिंग आउट पैटर्न की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 274 270 मेजर सपोर्ट जोन है, अब मोस्ट लाइकली ये होल्ड नहीं होगा और 245 तक डाउन साइड मिलेगी। तो मैं कहूँगा बिल्कुल इस स्टॉक से नेक्स्ट वीक में अगर बाउंस बैक आता है और ये 282 285 की जोन में मिल जाता है तो स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। आज के सेशन में नियर हाइज ऑफ द डे आके क्लोज किया, हैमर कैंडल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुल बैक मिल सकता है। अगर ये नेगेटिव कैंडल होती तो मैं क्लियरली आपको एग्जिट करा देता, क्योंकि 270 274 के नीचे अगर क्लोज करता है स्टॉक तो इसमें एक्सट्रीम नेगेटिविटी आ जाएगी। डेफिनेटली एक्सट्रीम नेगेटिविटी के चांसेस हैं तो बीएचईएल के ऊपर फोकस रहना चाहिए इस हिसाब से। अच्छा सर, आपने जैसे हीरो की बात की थी शुरुआत में, एफएमसीजी की भी आपने तो बात कर दी है, लेकिन एचयूएल के डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास स्पेसिफिकली एचयूएल लेके आ रहा हूँ। ईयर टू डेट अगर आप टॉप लूजर्स देखें निफ्टी के तो उसमें से एक है एचयूएल, एक है टाइटन, उसके अलावा एक है एचडीएफसी बैंक और एक है एचयूएल। लेकिन एचयूएल के इस हफ्ते के चार्ट्स अगर आप देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इस हफ्ते कुछ 7%, पौने 7% चला है सर। तो फाइनली ईयर टू डेट थोड़ा टर्न अराउंड दिखाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। एक बार बताइए सर, एचयूएल के चार्ट्स कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एचयूएल में अगर आप मंथली चार्ट पे देखें तो 4 महीने की करेक्शन थी और लास्ट वीक में लास्ट मंथ में बहुत नैरो रेंज कैंडल थी। तो जब आप फॉल करते हैं तो आप जनरली वाइडर रेंज कैंडल बनाते हैं यस। और इतनी एक्सट्रीम नैरो कैंडल ये इंडिकेट कर रही थी कि जो पैनिक सेलर्स थे या जो वीक लॉन्ग्स थे वो कम्प्लीटली शेकआउट हो चुके हैं और स्ट्रॉन्गर हैंड्स ने काफ़ी अच्छा माल एक्यूमुलेट किया है और इसी वजह से आपको करंट वीक में ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। 6.5% स्टॉक ऊपर जाके क्लोज किया है। नेक्स्ट वीक में कहीं भी डिप मिलती है 2320 2300 की जोन में तो स्टॉक को लॉन्ग कर लेना चाहिए। ऊपर में 2500 से 2600 तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे, बट ये स्टॉक जैसा आपने कहा कि एफएमसीजी वैसे ही धीरे चलता है और एचयूएल भी काफ़ी स्लो मूविंग काउंटर है, तो थोड़ा सा टाइम लेके पेशेंस दे के स्टॉक को लॉन्ग कीजिएगा ताकि ऐसा ना हो कि 3-4 दिन ना चले तो आप फ्रस्ट्रेशन में बेहतर है। ये पेशेंस वाला स्टॉक है, अप मूव जरूर देगा लेकिन धीरे धीरे देगा, तो अगर पेशेंस है तो ही लॉन्ग करना चाहिए, नहीं तो फिर किसी हाई बीटा काउंटर में ब्रेकआउट प्ले कीजिए, वहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा तेज मिल जाएगा। वैसे भी इलेक्शंस के टाइम पे पेशेंस की बात कर रहे हैं सर आप, लेकिन फिर भी मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन हाँ ज़रूर लोगों को नज़र रखनी चाहिए। तो सर एक छोटे से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, अपने नानकड़ो विराम लें, विराम बाद फिर एक बार अपनी चर्चा ने आगे बताइए।
બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત. આગળ વધીએ અને ફરી એકવાર ચર્ચાની શરૂઆત કરીશું. આપણી સાથે અંશુલજી જોડાયેલા છે. अंशुल जी, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. नेक्स्ट स्टॉक जो फोकस में वीकली टॉप लूजर्स में से निफ्टी 500 में से मैं देख रहा था, वोल्टास. बहुत ही इंटरेस्टिंग. आपने देखा होगा रिसेंटली कंज्यूमर गुड्स, उसमें भी स्पेशली वोल्टास में काफ़ी अच्छा मूव आया था. वोल्टास काफ़ी ज़्यादा स्लो मूवर भी रहा है और उसके बाद काफ़ी अच्छी रैली हमें रनअप देखने मिला. और वाइट गुड्स देखिए आप, या फिर कंज्यूमर गुड्स देख लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छा रनअप देखने मिला. लेकिन अब थोड़ा समर सीजन भी पीक बना चुका है. वोल्टास के नंबर्स भी खराब आए हैं एक तरीके से देखने जाएं तो मुनाफा वसूली भी जैसे जैसे गर्मी कम होगी वैसे यहाँ पर होती हुई देखने मिल रही है. सर देखिए, इसमें एक बड़ी दिक्कत ये आई है कि मंथली चार्ट पे इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आया था अप्रैल के महीने में, और लगभग आप पकड़ के चलिए कि इस स्टॉक ने 3 साल का पूरा राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ख़राब नतीजों की वजह से गैप के साथ इसमें हम ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करते करते गैप के साथ उसके नीचे आके क्लोज कर गए हैं. ये अपने आप में एक्सट्रीम नेगेटिव है. प्रीवियस मंथ हाई भी रिजेक्ट हुआ और गैप के साथ हमने ब्रेकआउट पॉइंट तोड़ा है. तो लॉन्ग्स कंप्लीटली इसमें ट्रैप्ड हैं. किसी भी तरह की रैली 1360 तक मिल जाती है, 1340 से 1360 के बीच में कंप्लीटली लॉन्ग से एग्जिट कर लेना चाहिए. 1120 तक के लेवल ये ऑन द डाउन साइड दिखा सकता है. बिल्कुल ख़राब चार्ट है. इतना गैप के साथ इसको नहीं निकलना चाहिए था. ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है. तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो थोड़ा सा बाउंस बैक का वेट कीजिए. 1320 से 1360 के बीच में मेजर सप्लाई जोन है, वहाँ कहीं भी रिजेक्शन लेता है अर्ली चार्ट पे तो एग्जिट कर लेना चाहिए. ठीक है. वोल्टास, आपको चार्ट्स ख़राब नज़र आ रहे हैं अब यहाँ से आगे तो एग्ज़िट की रिकमेंडेशंस मिल रहे हैं. आईटी स्टॉक्स के दो ऐसे काउंटर्स हैं जो निफ्टी 500 में टॉप लूजर्स हैं. सबसे पहला है सोनाटा और दूसरा है इंटेलेक्ट डिज़ाइन. पहले इंटेलेक्ट की बात करते हैं सर. इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना कुछ पौने 17% कम हो गया और 874 का क्लोजिंग है, 864 तक जाके आया है, 864 तक. तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं चार्ट में. वीकली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा वसूली हुई है यहाँ पे. कैसे देखेंगे इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना? देखिए, इंटेलेक्ट में प्रॉब्लम ये थी कि 4 महीने की अप मूव लेने के बाद इसने ब्रेकआउट दी थी, और जनरली मार्केट में मूव्स 3 to 5 डेज का होता है, और 4 अप बार लेके अगर आप ब्रेकआउट दे रहे हो तो फिर चलने की गुंजाइश कम बचती है. जी. 2 महीने काफ़ी स्ट्रगल किया कि वापस से अप मूव ट्रिगर हो जाए, लेकिन करंट मंथली चार्ट में अगर देखें तो करंट मंथ में कम्प्लीटली गिव अप करते हुए दिख रहा है. वीकली एकदम लो पे क्लोज है. रिजल्ट भी आई गेस ख़राब ही हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद ये गैप डाउन खुला है. तो चार्ट कम्प्लीटली डैमेज लग रहा है. यहाँ पे डाउन साइड में 745 तक एक मेजर सपोर्ट है, वहाँ तक तो ये स्टॉक आ सकता है. और प्रोबेबली जिस क्वांटम से सेलिंग आ रही है, जितने वॉल्यूम से सेलिंग आ रही है, 99% चांसेस है कि ये 745 के अपने सपोर्ट लेवल को होल्ड ना करे और उसके नीचे आगे क्लोज करे. ठीक है, बिल्कुल इनके सपोर्ट के भी नीचे जाने के पूरे चांसेस हैं. यह है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना. और ऐसे ही जो मैंने दूसरा स्टॉक बोला था वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर. अब यहाँ तो दूसरे सारे रीजंस भी हैं, रिजल्ट वगैरह, लेकिन फिर भी 23% एक हफ्ते में कम होना ऑब्वियसली काफ़ी ख़राब जो है सेटअप बनता हुआ हमें देखने मिल रहा है. कुछ 500 के ऑड लेवल्स भी आज इंट्राडे तोड़े थे, उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हो गया, लेकिन फिर भी 23% एक हफ्ते में काफ़ी ख़राब सेटअप बन चुका है अब सोनाटा सॉफ्टवेयर के लिए. सर देखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर में जब रैली स्टार्ट हुई थी 259 ऑड लेवल से, तो वहाँ से 250%, 235% ये स्टॉक चल के ऊपर में हाई बनाया था अपना लगभग 870 का. वहाँ से थर्ड डाउन मंथ है, और रिजल्ट के बाद 15% का, तो इस जो 25% आप कह रहे हैं नीचे क्लोज हुआ है, इसमें 15% तो केवल गैप डाउन ही खुला था, और उसके बाद और 10% एक्सटेंड होता हुआ दिखा है. तो ये अपने नेगेटिव फॉर्मेशन में है. यहाँ से स्टॉक में जो मेजर सपोर्ट था, जैसे अभी लास्ट स्टॉक जो हमने डिस्कस किया, वो सपोर्ट से दूर था. ये अपने सपोर्ट को, जो फाइनल सपोर्ट था मंथली चार्ट पे, उसके भी नीचे आगे क्लोज किया है. तो एक्सट्रीम नेगेटिव फॉर्मेशन है. नेक्स्ट वीक में अगर कहीं बाउंस बैक मिलता है 560 575 की जोन में, तो एग्जिट कर लेना चाहिए. प्रोबेबली ये स्टॉक नीचे में 400 तक की लेवल दिखा सकता है. ठीक है, तो इनके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए. सर इसके अलावा एक आखिरी मंदी वाला स्टॉक, और वो है सीएट. और इसके अलावा टायर स्टॉक्स ओवरऑल हमने देखा है काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, रिजल्ट्स भी ख़राब रहे हैं. सीएट के चार्ट्स भी ख़राब हो चुके हैं. ऑलमोस्ट 12.5% इस हफ्ते कम हुआ है सीएट. देखिए, सीएट में 5 दिन नेगेटिव क्लोजिंग रही है. पूरा वीक लो पे जाके क्लोज किया है.
तो जनरली 3 to 5 बार्स का मूव होता है, ऑलरेडी 5 बार डाउन हो चुके हैं, तो कल और परसों के सेशन में प्रोबेबिलिटी रहेगी कि बाउंस बैक कर सकता है। और बाउंस बैक बहुत शार्प नहीं रहेगा, बहुत माइनर सा बाउंस बैक रहेगा। 40-50 रुपए का बाउंस बैक, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बहुत एक्सट्रीम एंड पे चला गया तो 2330-100 रुपये ऊपर तक ये जा सकता है, वहाँ पे स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अपना जो बाइंग पैटर्न था उसको फेल किया है। तो इस जनरली ऐसे केसों में स्विंग लो टेस्ट होता है, और इसका स्विंग लो 2039 पे है। तो यहाँ से 40 से 60 रुपए कोई भी रैली मिल जाती है तो स्टॉक को बेच देना चाहिए, 2040 के अराउंड वापस से रिकंसिडर करना चाहिए। ठीक है सर, तो ये हैं सारे टॉप लूज़र्स। टॉप गेनर्स में से हमने बात की जुपिटर वैगन्स की। इसके अलावा एक और स्टॉक जिसकी हमें बात करनी चाहिए वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज इस हफ्ते कुछ 11.5% चल गया। ऑब्वियसली नंबर्स वगैरह आ गए, थोड़ा ऑटो सेक्टर का फैक्टरिंग भी यहाँ पर रहेगी, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से इंडस्ट्री चल रही है उसके सामने चलना, भारत फोर्ज के चार्ट से एक बार सर 1437 पे थोड़ा सा अटका, 1400 के नीचे का क्लोज है आज का। देखिए, भारत फौज में रिजल्ट के बाद एकदम से जो रैली बनी थी 13%, 13.5% की एक ही दिन में बन गई थी। और इतने बड़े बेस के काउंटर में जब 13% की रैली बनती है तो जनरली 5 से 8 दिन वोलेटिलिटी डाइजेस्ट करने में निकालता है। बट ओवरऑल वीकली चार्ट पे देखें तो 14-15 हफ्ते की इनसाइड बार से ब्रेकआउट आया है, तो ये स्टॉक में 1500, 1550 तक की रैली डेवलप होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है 1440, 1445 के ऊपर, तो लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट कर लेना चाहिए। 1550 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, 1550 तक के टारगेट्स के ऊपर हमारी नजर रहेगी भारत फोर्ज यहाँ पर। सर, इसके साथ ही वक्त हो चला है विदा लेने का। जो भी हमने चर्चाएं की हैं उसके ऊपर आपके डिस्क्लोजर्स। देखिए, इसमें से कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, जैसे हिंद कॉपर हो गया या हीरो मोटो हो गया, ये हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। और जो जनरली व्यूज़ हम अपने क्लाइंट को देते हैं वो यहाँ पे भी शेयर किए हैं, कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू शेयर नहीं किया है। तो मार्केट के मोमेंटम के साथ चलिए, वहीं पैसा बनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी, और हैव अ हैप्पी वीक एंड आपको। સેમ ટુ યુ। જી, થેન્ક યુ સો મચ સર। તો આપણે વાત કરી ભારતીય માર્કેટ્સનું ક્લોઝ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। સ્વાભાવિક થોડા એવા સપ્તાહના અંતે મામૂલી રિકવરી સાથે નિફ્ટીમાં થયું, પણ બેંક નિફ્ટીએ હજુ સુધી શ્વાસ લીધો નથી। લેટ્સ હોપ ફોર ધ બેસ્ટ કે આવતા સપ્તાહની શરૂઆત, વોટિંગનો દિવસ છે, 13 તારીખે મતદાન થવાનું છે, અલગ અલગ ફેઝિસ જે ચાલી રહ્યા છે તે પ્રમાણે આવી સ્થિતિમાં સોમવારે ફરી થોડો રાહતનો શ્વાસ માર્કેટ લે, નહીં તો અત્યાર સુધીના જે ફેઝિસ છે તેને જોતા તો ભારતીય માર્કેટ્સમાં વેચવાલી સતત હાવી થતી જોવા મળી રહી છે। આ સાથે જ આ શોમાં હાલ બસ આટલું જ। મને યશને આપશે રજા। આગળના અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ ગુજરાત।